Hello viewers, welcome back to our new lecture. And in today's lecture we are going to discuss equilibrium in the case of perfect competition in the case of short run. So here we are with equilibrium under perfect competition in the case of short run. I am writing down the shortcut. There are two types of runs, that is short run and long run. That is the topic for the another video you can say. But यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे that will be for short run only. सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात करते हैं हम लोग, that is कि perfect competition जब हम बात करते हैं इसके बारे में जो डिटेल है वो मार्केट के चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलती है. बट इन शॉर्ट यू कैन से इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द होल competition is divided into, you can say, firm and industry. So when you are talking about the firm and the industry, you have to be clear that you have to make a difference between these two. Simple in the simple word, you can say single producer is known as a firm for the competition, and group of all the firms operating in a particular competition is known as an industry. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देर आर सेवरल अदर यू कैन से प्रोडक्शन हाउसेज नेम X, Y, Z. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स. सो X, Y, Z आर दी प्रोडक्शन हाउसेज एंड collectively these X, Y, Z will be known as the film industry. So I think it should be clear in your mind. But when you're talking about the perfect competition, the main thing that you have to be aware of is that firm is a price taker and industry on the other hand is a price maker. What is this? This is actually this industry is making the prices on the basis of the interaction of demand and supply. Whatever be the demand and supply in the market, on the basis of that demand and supply, industry frames the prices. So industry here is called the price maker because on the larger side industry देख रही है पूरी चीज़ को एक larger angle से. So on the basis of the demand supply, total demand total supply, industry decide करती है कि what will be the prices, and this price that has been framed by the industry will be taken over by the firms, because here firm is a price taker because of the characteristic of homogeneous products. Because they are selling the homogeneous products, all the firms are selling the same type of product in the case of perfect competition, so they cannot differentiate between two different products. उनके marketing भी same है, उनके packaging भी same है, उनका advertisement भी same है, उनकी quality भी same है, उनकी quantity भी almost you can say same है. So they cannot differentiate between two different products. So all the products will be homogeneous in all respects, so they cannot differentiate between them. So they cannot differentiate between the prices as well, and they have to opt the prices that are prevailing in the market. So these firms will be known as the price taker. So if you just look towards the diagram of this, you can see that there are different two panels. You can name as panel 1 here and panel 2 as this. Panel 1 will define the case of industry and panel 2 will define the case of firms. So in the case of industry, here this is SS is the supply curve and here DD is the demand curve, and on the basis of this the prices will be set as OP on sorry to say, but on Y axis we are showing the prices. हम भूल गए थे कहाँ पे क्या उसको note down करना है, because labeling is more important. On X axis we are showing the outputs. Similarly on the panel 2, this Y axis will show the prices and X axis shows the output. Now इस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस सेट हुआ, इसको हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड द सेम क्वांटिटी विल
इन द सेम प्राइस विल बी टेकन ओवर बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, और ये हमारा प्राइस भी होगा, यही हमारा AR भी होगा और यही हमारा MR भी होगा, बिकॉज हमारे प्राइसेस हमेशा सेम रहते हैं बिकॉज ऑफ द होमोजेनिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हमारे सारे प्राइसेस सेम हैं। और प्राइसेस डिफाइन करने वाला प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री प्राइस सेट करता है, जिस तरह से यहाँ देखिए डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया, और ये जो प्राइस सेट हुआ है ये प्राइस फर्म्स ने टेक ओवर कर लिया। नाउ द फर्म्स विल सेल अनलिमिटेड क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। द फर्म इज नॉट इन द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस द प्राइसेस इन ऑर्डर टू सेल मोर, सो दिस इज द प्राइस दैट विल बी टेकन ओवर बाय द फर्म। अब हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे कि इस जो इंडस्ट्री से प्राइस टेक ओवर किया फर्म ने, इससे किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन को मीट करते हैं। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या? इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है कि डिटेल इसके बारे में जानने के लिए, बट simply we can say MC should be equal to MR, and the second condition is MC should cut MR from below. अब इसके बारे में पूरी डिटेल थ्योरी है जिसके बारे में मैंने कहा ना अलग वीडियो बनाई जा सकती, बट you have to assume that this is the equilibrium condition where MC is equals to MR. MC MR होना बराबर ये इक्विलिब्रियम की पहली निशानी होगी हमारे सामने, and there will be 3 different cases. हमारे सामने 3 different cases आएंगे in the case when we will study perfect competition. 3 different cases. The first one will be known as the loss. यहाँ पे losses होंगे जहाँ पे average cost will be greater than the revenue. Similarly, दूसरा केस होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कुछ बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट से मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वेयर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू बीइंग ड्राइव बाय द फर्म, एंड द थर्ड केस विल बी सुपर प्रॉफिट कंडीशन, और यू कैन से द एबनॉर्मल, सुपर नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट and abnormal profits, you can say. Super profit means the profit over and above what the normal profit is being earned by the firm is known as super profit. So super profit will be the condition where SAC will be lesser than the average revenue being earned by the firm. ये केसेस हमारे सामने 3 बेसिक आएंगे। इसके बारे में अगर हम लोग देखें डायग्राम के सेंस में कि किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, तो हम लोग नीचे यहाँ पे देखेंगे आके इसी स्लाइड में। हमारे सामने ये 3 कंडीशंस गिवन है। हमने ऑलरेडी ये कर्व बनाया हुआ था क्योंकि स्केल से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, लाइन सीधी खींचती है। सो लेबलिंग नहीं की थी मैंने। ऑन y एक्सेस इन एवरी डायग्राम ऑन द y एक्सेस वी विल शो द प्राइसेस। On every y-axis we are showing the prices of the commodities, and x-axis denotes the output. Output is shown on x-axis. ये लेबलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि एक्चुअली किस चीज़ पे क्या चीज़ दिखाई जा रही है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने का डर रहता है। सो दिस लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल टू दी एक्स एक्सेस, दैट इज हल्की सी पैरेलल नहीं है लेकिन बट यू हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन। ये वही लाइन है जो कि फर्म ने टेक की थी, जो कि मेक करी थी इंडस्ट्री ने ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको याद हो, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइस किस बेसिस पे डिफाइन करती है इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई, और वही प्राइस को बाकी फर्म्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं। फर्म्स उसी प्राइस पे ऑपरेट करती हैं जो प्राइस इंडस्ट्री ने बना के दिया था उनको। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इस पे कर्व बनाएं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि वी आर ड्राइंग दी AC कर्व।
कुछ लोग इसमें AVC कर्व भी बना देते हैं, लेकिन अगर आप AVC कर्व नहीं भी बनाते हैं, सिर्फ AC कर्व ही बनाते हैं, देन ऑल्सो इट वर्क्स। लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स में है AVC कर्व बना हुआ, तो मैं अलग से बना के आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से आपको थोड़ा सा देखना ये है, सारे कर्व मैं पहले बना दूं यहाँ पे। मैं AC कर्व को कोशिश करता हूँ कि रेड लाइन से डिनोट करूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो सके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दिस इज AC कर्व और यू कैन से SAC कर्व, एंड इन दिस केस दिस इज SAC कर्व। अब मैं हर डायग्राम में कोशिश कर रहा हूँ कि MC कर्व को वाइट लाइन से डिनोट करूँ। आप देखें अगर MC, अच्छा कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि कहीं पे आपने देखा होगा कर्व बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, कहीं पे कर्व ऐसे बना हुआ है, कहीं पे कर्व ऐसे बना हुआ है। एवरीथिंग इज़ करेक्ट। कुछ लोग बिल्कुल यूं करके बना देते हैं। सो थिंग्स आर क्लियर, क्योंकि जो यू शेप है डिफाइन होता है लॉ ऑफ फेवरेबल प्रोपोर्शन से, और डिपेंड करता है कि किस तरह से वो जो भी ऑथर है वो डिफाइन करना चाह रहा है किसी भी चीज़ को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आपका जो कर्व है दैट शुड बी ऑफ यू शेप। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे इसी मसले पे कि सबसे पहले हमें देखना है वेयर MC। देखिए MC की बेसिक कंडीशन ये है कि MC MR को कहाँ पर से काटता है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये यहाँ पे MC ने MR को नीचे से काटा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी लाइन को फिर हम एक्सटेंड करते हैं, और MC की दूसरी क्वालिटी क्या है, MC शुड कट AC फ्रॉम इट्स मिनिमम। यहाँ पे इसने मिनिमम से काटा है, तो जहाँ पे MC ने MR को काटा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और इस लाइन से जो एक्सटेंड लाइन होके आ रही है, दिस डॉटेड लाइन विल बी टचिंग दी कॉस्ट कर्व। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं OC, और यहाँ P से नाम देते हैं P, और यहाँ पे नाम देते हैं हम R, और यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं OQ। सो इफ यू सी OCRQ, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल जो ऊपर से टच होके आ रहा है जो कॉस्ट कर्व से, दैट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट। और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है OPEQ, ये जो आपका टच होके आ रहा है यहाँ पर से ये एंड देन यहाँ पर से EQ, तो ये जो आ रहा है आपका छोटा वाला दैट रिप्रेजेंट्स दी रेवेन्यू। सो अगर आप देखिए यहाँ पे तो बड़ा रेक्टेंगल क्योंकि ज़्यादा है, सो यू कैन से कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। दैट मीन्स PCRE, this shaded area, what I'm going to shade is this area. This area represents the loss. So this is a case of loss because here cost is greater than revenue, or you can say that here SAC is greater than AR. This is the first condition. When you are talking about this condition, here also you are drawing the MC curve which is cutting AC from its minimum. AC from its minimum, and this MC is cutting MR from this point. So this is a point of equilibrium. So here you can say that cost is equals to revenue because OPEQ is equals to cost is equals to revenue. यहाँ पे आप देखिए कि कॉस्ट भी वही है, वहीं पर टच हो रही है, कॉस्ट कर भी वहीं टच हो रहा है, और आपका रेवेन्यू कर भी वहीं से टच हो रहा है, मतलब यही कॉस्ट है यही रेवेन्यू है। सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे फर्म बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ से MC हमने काटा जिसने AC को मिनिमम से काटा। पहले दो चीज़ें देखना होती हैं, मैंने बताया था। MC पहली बात तो मिनिमम से काट रहा है, दूसरी चीज़ MC MR को कहाँ से काट रहा है, MC MR को यहाँ पर से काट रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस इज द प्राइस। और ये जो लाइन नीचे आ रही है, जो ये लाइन जो आ रही है, ये कॉस्ट कर्व को कहाँ से टच करी, लाल वाले कर्व को। ये देखिए डॉटेड लाइन मैंने बना दी। सो दिस R रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट। सो OPEQ, द अपर स्क्वायर, जो ये वाला स्क्वायर जो यहाँ पर से टच हो रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेवेन्यू। NOR, इसका नाम दे देते हैं हम ORSQ, रिप्रेजेंट्स दी कॉस्ट। क्यों? ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉस्ट कर्व से टच होकर आ रही, सो इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट। सो हियर यू कैन से रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और यू कैन से SAC is lesser than AR. So this area, shaded area RPES, this shaded area, ये shaded area आ रहा है, this represents the super profits. So ये हमारे सामने तीन conditions आती हैं in the case of short run and the perfect competition, and I hope that all the points are clear to you. सारी बातें हमारे जो भी थी हमने सम अप करने की कोशिश करी है। अगर कोई भी दिक्कत अभी आपके सामने आती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन योर माइंड, देन यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।